السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سبھی لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر خیر کریں گے جسے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں رب سے مانگا تھا۔ جی ہاں، ایک ایسی ذات کا چرچا کریں گے جس کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمان دونوں کو تقویت ملی تھی، جس کے اسلام قبول کرنے سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم مشرف ہو گئے تھے، ہم طاقتور ہو گئے تھے۔ ایک ایسے ذات کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں کہ جو رائے زمین پہ دیتا تھا لیکن اس کی موافقت عرش پہ ہوا کرتی تھی۔ ایک ایسے انسان کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے جس انسان کو اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور بشارت کئی مرتبہ دی گئی تھی، نام لے کر کہا گیا تھا کہ تم جنتی ہو، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر محبت کا دوسرا مقام اس انسان کے حوالے کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں بات کریں گے جو سابقون الاولون میں سے آتے ہیں، ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جسے سب سے پہلے تاریخ اسلام میں امیر المؤمنین کا لقب ملا، ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے خلیفہ بنتے ہی اس وقت کی دو سب سے سپر پاورز ملک، سب سے سپر پاور دیش ایران اور روم، ان دونوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اس انسان کے سامنے اور اس کی حکومت کے سامنے۔ میری اتنی تمیز سے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی سوانح کو چند منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، از اول تا آخر آپ کی زندگی کے جو بھی اہم مرحلے گزرے ہیں، جو بھی اہم شعبے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اسے آپ کے گوشے گزار کریں گے تاکہ اسے ہم خود جانیں، اپنے بعد آنے والی نسل اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کے سینوں میں یہ چیز محفوظ کریں، انہیں بتائیں کہ عمر کون تھے، انہیں بتائیں کہ عمر کا مقام کیا ہے، انہیں بتائیں کہ عمر کے جیسا بننا کتنا ضروری ہے، انہیں بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کیا سمجھتے تھے اور کیا مقام دیتے تھے۔ انہیں بتلانا ضروری ہے کہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مقام دیا ہے۔ جی ہاں محترم حاضرین، سب سے پہلے اگر میں بات کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال بعد ہوئی۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر 13 سال کے چھوٹے تھے۔ پیارے نبی کی پیدائش عام الفیل کے سال ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق آپ کے والد کے قبیلے کی طرف سے دیکھیں تو آپ قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور یہ اشراف قریش میں سے شمار کیا جاتا۔ قریش کی سفارتکاری کی ذمہ داری اس قبیلے کے کاندھوں پر تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے والدہ کے قبیلے کی اگر ہم بات کریں تو آپ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قبیلے سے بڑے بڑے سردار بھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے تاجر لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس میں سر فہرست ابو جہل اور ولید بن مغیرہ جیسے مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ اس قبیلے سے سابقون الاولون صحابہ کرام بھی تعلق رکھتے ہیں۔ جی ہاں، دار ارقم کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان مکہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے، جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں لوگوں کو بتلاتے تھے۔ دار ارقم کے جو مالک ہیں ارقم بن ابی الارقم، وہ بھی قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی صحابی ہیں۔ آپ نے ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کا نام سنا ہوگا، بہت ہی مشہور جوڑی ہے صحابہ کرام کے درمیان، دونوں میاں بیوی، یہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے کے اعتبار سے اشراف قریش میں شمار کیے جاتے تھے اور آپ کا قبیلہ کافی طاقتور اور کافی مضبوط قبیلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت محترم حاضرین اگر میں بتلانا شروع کروں تو کافی وقت درکار ہو جائے گا، کافی وقت لگ جائے گا، لیکن ان کی فضیلت ختم نہ ہو شاید۔
ان کی فضیلت کے بارے میں شروعات کروں تو سب سے پہلے ایک بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، جس کے لیے دعا نبی آخر الزماں کی زبانی ہو رہی ہے، جس کے قبولیت اسلام کی دعا نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین ہذین الیک، اے اللہ ان دو لوگوں میں جو بھی تجھے زیادہ عزیز ہے، جو بھی زیادہ تجھے محبوب ہے، جسے تو بہتر سمجھتا ہے اسلام کے لیے، اللہ تو اسے اسلام کی توفیق دے اور اس کے توفیق اسلام سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے محمد الرسول اللہ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، کسے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ دعا کیا، عرش الہی پہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین کی دعا قبول کرتے ہی حضرت عمر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ عمر نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے، مسلمان پاورفل اور طاقتور بن جاتے ہیں مکہ کے اندر۔ جو مسلمان ابھی تک چوری چھپے عبادتیں کر رہے تھے، جو مسلمان دار ارقم میں سمٹ کر رہ گئے تھے، وہی مسلمان اب دار ارقم سے نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ یہ عمر کی فضیلت ہے، یہ عمر کی طاقت تھی جو ان مسلمانوں کو، چند انگلیوں پہ گنے جانے والے اہل توحید کو دار ارقم سے نکلنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ انہیں اتنی طاقت مل جاتی ہے صرف اس انسان کے قبول اسلام سے۔ محترم حاضرین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اسے سمجھیں، اللہ کے نبی نے مانگا ہے اپنی دعاؤں میں، تب جا کے عمر نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین قسمت ہے جس کے لیے نبی دعائیں کریں، جس کے ہدایت کے لیے نبی دعائیں کریں۔ کتنا بہترین ہوگا وہ انسان، کتنا خوش بخت ہوگا وہ انسان۔ اس حدیث سے ہم سبھی اندازہ لگا ہی سکتے ہیں بہتر طریقے سے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اگر میں گننا چاہوں، اسے میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہوں، بہت لمبی فہرست ہے، ایک نہیں بہت لمبی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ای الناس احب الیک، آپ کو اس دنیا میں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کون سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری بیوی عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری۔ عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے نبی مردوں میں بتلائیے، عورتوں کو چھوڑ دیجئے، مردوں میں آپ بتلائیے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اس پوری دنیا کے اندر یہاں پہ بہت سے صحابہ موجود ہیں، ان لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ابوہا، عائشہ کے والد سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب اس کے بعد عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ وہ دو صحابی ہیں، یہ وہ دو انمول رتن ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا تھا۔ ان دو انمول رتنوں کو محمد الرسول اللہ نے سنبھال کر اپنے سینے میں جگہ دی تھی، اور آج دنیا نعوذ باللہ ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے، ان کے اخلاق کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، ان کی اخلاق کشی کی جا رہی ہے، ان کے کردار اور ان کے کیریکٹر پہ سوال کیا جا رہا ہے، انہیں نعوذ باللہ خائن گردانا جا رہا ہے صرف ایک خلافت کے مسئلے کی وجہ سے۔ حالانکہ خلافت کے زیادہ حقدار کون تھے ہم سبھی کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چند جاہل قسم کے لوگ آج صحابہ کرام کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہیں، طعنہ کستے ہیں، نعوذ باللہ بہت غلیظ حرکت ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ تو صرف ایک حدیث ہے۔ اگر میں بات کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے صحابی جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں کئی مرتبہ دی گئی۔ میں ایک مرتبہ ایک بات بتلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ کسی باغ میں داخل ہوئے، دروازے پہ مجھے اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا، یہاں پہ رہو، پہرے داری کرو اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔ کچھ دیر کے بعد ایک انسان آتے ہیں، اندر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ نے بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور اسے بشارت بھی دو کہ وہ جنتی ہے۔ اندر آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب پڑی تو پتہ چلا وہ عمر ہیں، ابو بکر ہیں، پتہ چلا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور انسان آتا ہے، اس نے بھی سیم اجازت طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت دی۔ جب وہ اندر آئے تو معلوم ہوا کہ عمر تھے، انہیں بھی جنت کی خوشخبری، اور یہ اس مرتبہ عمر۔ تیسری مرتبہ ایک انسان آتا، اللہ کے نبی نے کہا اسے بھی اندر آنے کی اجازت ہے اور اسے ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دینا، لیکن ایک بات بتلا دینا کہ اس دنیا کے اندر اس کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی، اور وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس دنیا کے اندر ہی ان کے اوپر مصیبت ہے۔
ये एक और हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शेखैन को, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को जन्नती करार दिया। इसी तरीके से मैं बात करूँ, एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हादानी सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, सहाबा किराम भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए निगाहों से, प्यार भरी नज़रों से अपने दोनों सहाबी की तरफ देखते हैं, अबू बकर को देखते हैं, उमर को देखते हैं, और फिर तमाम सहाबा किराम से कहते हैं, हादानी सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नह, ऐ लोगों ये जो दोनों सहाबी बैठे हैं, ये अबू बकर और उमर जो बैठे हैं, इनकी तरफ इशारा करते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों ये जन्नत में बुजुर्गों के सरदार होंगे। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, इस बीच जितने भी बुजुर्ग लोग रहेंगे, जितने भी बुजुर्ग इंसान रहेंगे, उन तमाम इंसानों की ये दो लोग सरदार हैं, सिवाय नबी और रसूल को छोड़कर। सुभान अल्लाह, ये फजीलत है शेखैन की, ये फजीलत है अबू बकर और उमर की। इन दोनों को दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनाई गई। मैं आपकी फजीलत बतला रहा हूँ। मुहतरम हाज़िरीन, एक बात सुनिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह से कैसा था, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस हदीस से। एक मरतबा हज़रत उमर इस वाक़ई को खुद जिक्र करते हैं कि जब मेरी बेटी हफ्सा, उनके शौहर खुनैस बिन हुज़ाफ़ा, जब उनका इंतकाल हो जाता है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी हफ्सा का रिश्ता उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास लेकर जाते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा, मैं कुछ वक्त में आपको बतलाता हूँ। दोबारा जब मुलाकात होती, उन्होंने माज़रत कर लिया। उसके बाद वो अबू बकर के पास जाते हैं, अबू बकर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उमर कहते हैं, ये जब हदीस बयान कर रहे थे, रिवायत बयान कर रहे थे, तो उमर कहते हैं कि अबू बकर की खामोशी पे मुझे जितना गुस्सा आया, उतना उस्मान के इनकार पे भी नहीं आया। भाई खामोश क्यों हैं? मना कर रहा है, मना कर दीजिए, जो वजह है बतला दीजिए, कुछ बोलिए तो सही, खामोशी मत बरतिए। अब उसके बाद उमर वहाँ से भी चले जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह था, सुभान अल्लाह, हफ्सा के लिए, हज़रत उमर की बेटी के लिए पैगाम किसने भेजा? अल्लाह के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल ज़ात नबी आखिरुज़ ज़मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ज़रा सोचिए कितना बेहतरीन ये रिश्ता था। और उसके बाद जब दोनों का रिश्ता हो जाता है, अल्लाह के नबी और हज़रत हफ्सा का शादी हो गई, उसके बाद हज़रत अबू बकर कहते हैं, ऐ उमर, जब तुमने मुझसे सवाल किया था, मैंने कुछ बोला नहीं था, तुम मुझ पर बड़े बिगड़े थे, बहुत नाराज़ हुए थे, दिल के अंदर तुमने बहुत मेरे बारे में सोचा होगा और नाराज़गी तुम्हारी बहुत बड़ी होगी, मैं जानता था। मैं सिर्फ खामोश इस वजह से था क्योंकि मैंने एक मरतबा अल्लाह के नबी को हफ्सा का चर्चा करते हुए सुना था। मुझे लगा था शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम निकाह भेजेंगे हफ्सा के लिए, इसलिए मैं खामोश था। और ये नबी का राज था, इसलिए मैंने उस वक्त खामोशी बरती और तुम्हें भी नहीं बतलाया। और खुदा की कसम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता नहीं भेजते तो मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह कर लेता। मुहतरम हाज़रीन, उस इंसान की खुशबख्ती का क्या कहना जिसका दामाद इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हो, सुभान अल्लाह, जो नबी आखिरुज़्ज़मां रहमतुल लिल आलमीन हो, जिस इंसान का दामाद अल्लाह के बाद सबसे अफजल जात हो, जिस इंसान का दामाद जन्नत में रहे, जन्नती हो। मुहतरम हाज़रीन, उसकी खुशबख्ती का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सुभान अल्लाह। या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से मकामात हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं ख्वाब में मैंने देखा कि जन्नत में मैं हूँ और जन्नत में मैंने एक महल देखा, उस महल के कोने में एक औरत वज़ू बना रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा, किसका महल है? लोगों ने बतलाया उमर का है। जब फरिश्तों से मैंने सुना उमर का है, तो कहते हैं मुझे उमर की गैरत का इल्म था, इस वजह से मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, उस महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ देखने के लिए, क्योंकि मुझे उमर की गैरत का अंदाज़ा था। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नत में मैंने सोने का महल देखा, एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान एक सोने का महल देखा। फरिश्तों से मैंने पूछा, भाई ये किसका महल है? फरिश्तों ने जवाब दिया, कुरैश के एक इंसान का महल है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब मैंने कुरैश का नाम सुना, कुरैश के किसी इंसान के लिए ये चीज़ मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि मैं कुरैश का हूँ, हो सकता है मेरे लिए अल्लाह ने ये तैयार कर रखा हो। और जब मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ भाई, कुरैश के किस इंसान का? अल्लाह के नबी को उम्मीद थी कि ये मेरे लिए है, लेकिन फरिश्तों ने जवाब दिया उमर बिन खत्ताब के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर सामने बैठे थे, अल्लाह के नबी ये वाक़या बतला रहे थे। अल्लाह के नबी कहते हैं, उमर, उस महल के अंदर दाखिल होने से मुझे तुम्हारी गैरत के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं रोकी, मुझे तुम्हारी गैरत का इल्म था, इस वजह से मैं उस महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। उमर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आप पे कैसी गैरत खाऊंगा? सुभान अल्लाह। ये सही रिवायतें हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ। इन मुतअद्दिद जो रिवायतें अभी मैंने पेश की, इन तमाम रिवायतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। ये लोग जन्नती हैं,
मुहतरम हाज़िरीन, उमर की फ़ज़ीलत जानना चाहते हैं तो उमर के बारे में एक बात सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मुहद्दिसून फ़इन यकु फ़ी उम्मती फ़हुव उमर, कि मेरे से पहले जो उम्मतें आई हैं, तुमसे पहले जो उम्मतें इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा, उन उम्मतों के अंदर एक बंदा ज़रूर ऐसा हुआ करता था जिसके ऊपर इल्हाम किया जाता था, और अगर मेरी उम्मत में आज कोई ऐसा है तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इन्नल्लाह जअल अल-हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ बात को उमर की ज़ुबान और दिल पर जारी व सारी कर दिया, मुसल्लत कर दिया है। और इसका अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि उमर खुद कहते हैं वफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 मसलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मुवाफ़क़त की है, मेरी राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श इलाही से कुरान नाजिल किया है। उमर ज़मीन पे मशवरा दे रहे हैं, अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मशवरे की मुवाफ़क़त कर रहा है अपने वही इलाही के ज़रिए से। पूरी दुनिया को अल्लाह ने बतलाया है कि उमर ने ज़मीन पर जो फ़ैसला किया, उमर ने ज़मीन पर जो बातें कही थी, उमर ने इस ज़मीन पर अल्लाह के नबी को जो मशवरा दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मशवरे से 100% मुत्तफ़िक़ था। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा था अल्लाह के नबी हमें मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाना चाहिए, अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उम्महातुल मोमिनीन के मुतअल्लिक़ पर्दे के बारे में कहा, अल्लाह के नबी इनके पास अच्छे भी आते हैं, इनके पास बुरे भी लोग आते हैं, इनके पास ऐसे भी आते हैं जिनका दिल भी हो सकता है बिल्कुल साफ हो, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं उम्महातुल मोमिनीन के पास जिनके दिल गलीज़ हों, जिनकी निगाहें गलत हों। अल्लाह के नबी ने पर्दे का हुक्म दीजिए, ये लोग पर्दा करें। उमर को ये बात नहीं पसंद थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब भी कुछ मांगना हो पर्दे के पीछे से मांगना। अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। और बद्र की अगर मैं बात करूं, जंग बद्र आलम इस्लाम की पहली जंग, तारीख़ इस्लाम की पहली जंग, उस जंग के अंदर जब कैदी आते हैं, अल्लाह के नबी ने अबू बकर से पूछा, अय अबू बकर क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में, इन कैदियों के बारे में क्या सोचते हो, क्या मशवरा है? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी हमारे अपने ही लोग हैं, गर्चे गैर मोमिन हैं, गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, लेकिन हैं तो हमारे अपने लोग। एक काम करते हैं, इनसे फिदिया लेते हैं, उस फिदिये को हम अपनी ताकत बढ़ाने में, असलहा खरीदने में इस्तेमाल करेंगे, हमारी ताकत मजबूत होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे हथियार अच्छे हो जाएंगे, जिससे आगे चलकर अगर हमें जंग पेश आई तो हम जीत के इम्कानात बढ़ सकते हैं। दुनियावी तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा अबू बकर ने दिया। और ये लोग यहाँ से छूट कर जाएंगे, हो सकता है ये इस्लाम कबूल कर लें, कल को हमारी सफ में हमारे साथ कुफ्फार के खिलाफ लड़ें, हो सकता है। उसके बाद अल्लाह के नबी उमर की तरफ मुखातब हुए, उमर से कहा, ए उमर मा तरा या इब्न अल-खत्ताब, ए उमर तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा मशवरा क्या इस बारे में? उमर ने कहा, अल्लाह के नबी मैं अबू बकर के मशवरे से आज बिल्कुल भी मुत्तफ़िक़ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अक़ील को अली के हवाले किया जाए, मेरे अपने जो इस जंग में शामिल है फला फला इंसान मेरे हवाले किए जाएँ, मैं उन लोगों की गर्दनें उड़ाऊँ और अली अपने भाई अक़ील की गर्दन उड़ा दे। मुहतरम हाज़िरीन, हज़रत उमर का मशवरा देखिए। हज़रत उमर फिदिये के हक़ में नहीं थे। हज़रत उमर का कहना था सबको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उमर का कहना था कि अगर आज हमने माफ़ किया, कल को ये और बड़े हो जाएंगे, कल को दीन इस्लाम के खिलाफ और साजिशें करेंगे और बढ़ चढ़ कर दीन इस्लाम के खिलाफ ये हिस्सा लेंगे, तो बेहतर यही कि आज ही ने कुचल दिया जाए, आज ही दबा दिया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात मानी, अगले दिन हज़रत उमर कहते हैं अगले दिन मैं अल्लाह के नबी के पास गया, देखा अल्लाह के नबी बैठ के रो रहे हैं, उनके साथ अबू बकर रो रहे हैं। उमर ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आप रो रहे हैं, अबू बकर रो रहे हैं, क्यों? अब मुझे बतलाइए, अगर मुझे रोना आया तो मैं भी रोऊंगा, और अगर रोना भी नहीं आया तो आप रो रहे हैं इस वजह से मैं भी रोऊंगा। ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, ये जज्बा ये था हत्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, रोना नहीं आएगा लेकिन रोऊंगा, क्यों? मेरे नबी रो रहे हैं इसलिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अय उमर तुमने जो मशवरा दिया था उस मशवरे के मुवाफ़क़त वही इलाही के ज़रिए से अल्लाह ने की है। सुभान अल्लाह, ये तीसरा मरतबा था। और इस तरीके से और भी मशवरे आए और भी बातें आई जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुवाफ़क़त करके दुनिया के सामने दिखाई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है, फ़ज़ीलत का बाब बहुत लंबा है और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मुहतरम हाज़रीन, इसके अलावा अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अमली ज़िंदगी की मैं बात करूँ, कितने अमल करने वाले इंसान थे, आप इसका अंदाज़ा, मैं चंद वाक़यात पेश करता हूँ, उसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि अमली मैदान के अंदर उमर कैसे थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा कराम मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि कुछ लोगों को मेरे सामने पेश किया गया और उनके ऊपर कुछ कुर्ते डाले हुए, कुर्ता वो लोग पहने हुए, किसी का कुर्ता सीने से शुरू हो रहा है, गले से शुरू हो रहा है और सीने पे ख़त्म हो जा रहा है,
किसी का कमर तक, किसी का पेट तक, किसी का और नीचे, किसी का और नीचे, और इसी तरीके से वो कुर्ता नीचे जा रहा है। कुछ देर के बाद जब उमर मेरे सामने से गुजरे तो मैंने देखा कि उमर अपने कुर्ते को संभाल नहीं पा रहे, इतना लंबा चौड़ा कुर्ता था उनका। उमर जैसा बहादुर इंसान, उमर की बहादुरी, उनकी शुजाअत हम सभी जानते हैं। पूरा मक्का इस चीज़ का मुअतरिफ था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बहादुर हैं। इतना मजबूत और हट्टा कट्टा इंसान अपने कुर्ते को संभाल नहीं पा रहा है, समेट नहीं पा रहा है अकेले। और अल्लाह के नबी से जब पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर क्या है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये दीन है। उमर अपने दीन के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर कितने सख्ती से अमल पैरा हैं, कितने सख्ती से अमल करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी दीनिल्लाहि उमर, कि मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा रहम दिल अगर कोई इंसान है तो अबू बकर है, और सबसे ज़्यादा सख्त इंसान कोई है दीन के बारे में, दीन को लेकर अगर कोई सबसे सख्त है, तंद मिजाज है, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तब हाज़रीन, ये आपके अमल का जज्बा था, आप कितने अमल पसंद थे, आप कितना सख्ती से अमल करते दीन इस्लाम पे। ये एक वाक़या काफ़ी है ये तमाम चीज़ें बतलाने के लिए। हाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमली मैदान में भी बहुत ज़्यादा आगे थे। मैं एक और मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत उमर को खैबर की एक ज़मीन मिली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने पूछा कि अल्लाह के नबी, इस ज़मीन के बारे में आपका क्या कहना है। वो ज़मीन बहुत बेहतरीन थी, उसके ऊपर फल आते थे, वो ज़मीन बहुत समरावर थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, अगर तुम चाहते हो तो इसकी मिल्कियत अपने पास रखो और इसके फ़रा को सदका और खैरात कर दो, यानी ज़मीन अपने नाम पे रखो, अपने पास रखो, लेकिन उसे बेचो मत, और उसे फ़ी सबीलिल्लाह आप सदका कर दो। उसका जो मालो मता आता है, जो भी मुनाफा आता है, जो कुछ आता है, अब अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मशवरे पर फ़ौरन उमर ने अमल किया, और उमर ने यह ऐलान किया कि आज के बाद इस ज़मीन को कभी ना बेचा जाएगा ना ख़रीदा जाएगा। इसका जो भी माल निकलेगा, जो भी इससे मुनाफा हम हासिल करेंगे, वो तमाम मुनाफा फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा, वो मुनाफा जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो माल जो रहेगा वो इब्ने सबील के लिए रहेगा, वो मुसाफिरों के लिए रहेगा, वो गरीबों के लिए रहेगा, वो मुहताजों के लिए रहेगा, वो ज़रूरतमंदों के लिए रहेगा, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उमर ने वो पूरी ज़मीन सदका कर दी। सुभान अल्लाह, आज कोई माई का लाल है जो इस तरह कर सके? आज ज़मीनों को इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में सदक़े और खैरात करने वाले लोग शायद उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग ही सिर्फ बचे हैं, बहुत कम, ना के बराबर हैं। आज दुनिया ऐसी हो चुकी है। मुहतरम हाज़रीन, मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमली मैदान में इस बाब में ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी। अब मैं बात करूँ एक बहुत अहम मसले पर, खिलाफत उमर के बारे में, दौरे खिलाफत के बारे में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो 10 साल की ज़िंदगी गुजारी बतौर खलीफा, सुभान अल्लाह, वो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन थी, मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदे वाली थी, इस्लाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और बहुत बड़ी बड़ी खिदमात उन्होंने अंजाम दी खलीफा रहते हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे, उस वक्त की सुपर पावर्स, फारिस, ईरान, रोम जैसी सुपर पावर्स मुल्क और देश, जो किसी के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे, जो कभी किसी से हारे नहीं थे, जो कभी किसी से खौफज़दा नहीं हुए थे, किसी से बारुअब नहीं हुए थे, किसी से मुतासिर नहीं हुए थे, जो अरबों को जाहिल समझते थे, जो अरबों को बद्दू समझते थे, आज वही अरब वाले जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे कलमा तौहीद पढ़ा था, कलमा शहादत का इकरार किया था, आज वही मुसलमान उन लोगों को हरा रहे थे, उनके घरों में घुस के उन्हें मग़लूब कर रहे थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये दोनों सुपर पावर्स देश, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और भी बहुत बड़ी बड़ी फतूहात हुई। बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ, जहाँ पे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बैतुल मक़दिस की चाबी लेने के लिए हाजिर हुए, पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था कि एक खलीफा वक्त, एक वक्त का हुक्मरान वक्त उस वक्त अपने ग़ुलाम को ऊँट पे सवार किया, उसकी नकील थामे आगे आगे चल रहा है। सुभान अल्लाह, एक ऊँटनी, 2 सवारी, उमर और उनका ग़ुलाम, लेकिन आगे पैदल चल रहा है बादशाह, वक्त का हुक्मरान, हाथ में नकील थामे हुए है, और उसका ग़ुलाम ऊँट पर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा बैतुल मक़दिस जब उस वक्त ये मंजर देख रहा था, पूरा बैतुल मक़दिस मुतासिर था कि भाई हमने ऐसा हुक्मरान आज तक दुनिया में नहीं देखा, हमने ऐसे हुक्मरान के बारे में कभी किताबों के अंदर नहीं पढ़ा, ऐसे हुक्मरान के बारे में हमने कभी अपने आबा व अजदाद से नहीं सुना। आखिर ये हैं कौन लोग? आखिर इन्होंने ये तालीम कहाँ से हासिल की? सुभान अल्लाह। बैतुल मक़दिस वालों ने जब हज़रत उमर का रवैया देखा, बहुत मुतासिर हुए। इसके अलावा बात करूँ तो मिस्र के अंदर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर ही
मिस्र में इस्लाम का परचम लहराया गया था, मिस्र को भी फतह किया गया था। और इस तरीके से बहुत सी फतूहात हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई थी। मुहतरम हाज़रीन, इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद किया जाता है, आपकी शहादत का जो वाक़या है बहुत ही मुतासिर है, उस वाक़े को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सीरत की किताबों में मौजूद है जिस तरीके से ग़ुलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बग़ैर किसी गलती के हमले किए, पे दर पे कई हमले किए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालत ऐसी थी कि कुछ भी खाते पीते थे, पेट से वो बाहर आ जाता था, थड़ियों से बाहर आ जाता था। नबीज़ पिलाया गया वो भी बाहर आ गया, दूध पिलाया गया वो भी बाहर आ गया। सहाबाए किराम की आंखों में आंसू था उस सुभान अल्लाह कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इतना मजबूत इंसान था, जो इतना मजबूत पहाड़ था, जो दीन इस्लाम के लिए एक किला था, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में मांगा था, आज वो इंसान बेचारा इतना कमज़ोर पड़ चुका है। आज बिस्तर से उठना पड़ता था तो एक इंसान का सहारा लेना पड़ता था। आखिरी वक्त में जब उमर को यकीन हो गया, दीगर लोगों को यकीन हो गया, जब आखिरी वक्त चल रहा है, हज़रत उमर ने अब्दुल्ला को भेजा, अपने बेटे अब्दुल्ला भेजा कि जाओ आयशा के पास, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनसे मेरा सलाम कहना, उनसे कहना उमर ने सलाम कहा है, उनसे मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने सलाम कहा है। मैं अमीरुल मोमिनीन अब नहीं रहा, अब मैं अमीरुल मोमिनीन बनने के काबिल नहीं रहा, अब मैं उन जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। तो कहना उमर ने सलाम भेजा है, और उनसे कहना कि उमर अपने दोनों साथियों के साथ जिस तरह दुनिया में था, मरने के बाद भी अपने दोनों साथियों के साथ रहना चाहता है। हज़रत आयशा के पास जब वो जाते, हज़रत आयशा रो रही थी, उमर के वाक़े को सोच सोच कर वो रो रही थी। अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब अपने बाबा जान की ख्वाहिश पेश की, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि वल्लाह मैंने उस जगह को अपने लिए बचा के रखा था, मैं चाहती थी कि मैं अपने शौहर के बगल में सोऊं कब्र में, लेकिन आज मैं उमर के ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पे तरजीह दे रहा हूँ। मैंने इजाज़त दिया, जाओ उमर को उनके दोनों साथियों के साथ ही रखना। अब्दुल्ला इब्न उमर आते हैं, हज़रत उमर को बतलाते हैं, हज़रत उमर बहुत खुश होते हैं। लेकिन आखिर वक्त में भी हज़रत उमर ने फिर से एक मरतबा तलकीन की, बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, नमाज जनाजा पढ़ लेना, जब मुझे दफनाने का वक्त आएगा, आयशा से एक और मरतबा इजाज़त ले लेना, एक और मरतबा कह देना मेरा सलाम, उमर का सलाम पहुँचाना, और फिर उसके बाद मेरी ख्वाहिश बतलाना, उस वक्त इजाज़त दें तो मुझे दफना देना, वरना आम मुसलमानों के कब्रस्तान में लेके चले जाना। मुझे वो जगह आयशा की ही है, अगर इजाज़त देंगी तो ही, वरना नहीं, वरना वो जगह मुझे नहीं चाहिए। और जब उनका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा जब वहाँ पे रखा जाता, अब से फिर से पूछा जाता हज़रत आयशा से, हज़रत आयशा ने इजाज़त दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफना दिया जाता। और इस बीच जब आपका जनाजा वहाँ पे रखा था, लोग आपको देख रहे थे, लोग मुसलमान जो थे वहाँ पे, उनके आंखों में आंसू था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि एक इंसान मैंने देखा लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा है, और उसने दुआ दी, अय अल्लाह तो उमर पे रहम फरमाना। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि अय उमर, अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने के बाद भी आपको आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा, क्योंकि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से कई मरतबा ये कलिमात सुने थे, जिअतु अना व अबू बकर व उमर, ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, कि मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर उमर आए। इस तरीके से कलिमात मैंने बहुत सुने थे। अबू बकर अल्लाह पे रहम फरमाए, मुझे उम्मीद थी आपका हश्र यही होने वाला है, मुझे उम्मीद थी अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों से अलग नहीं करेगा। और सुभान अल्लाह, जब अपने दोनों साथियों से जा मिले। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखता हूँ कि ये अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जी हाँ, शियाने अली कान खोल कर सुने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मौक़िफ़ था उमर के बारे में, उमर फारूक को लेकर उनके दिल के अंदर क्या ख्यालात थे, इस हदीस और इस वाक़े से आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें भी हज़रत उमर का इज़्ज़त, तो हमें भी हज़रत उमर की इज़्ज़त करनी होगी, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत अपने इस दिल के अंदर बनानी होगी। मुहतरम हाज़िरीन, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में जगह बनाई थी, उनके दिल से बढ़कर हमारा दिल नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी का दिल नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से बढ़कर। लेकिन जब वो वहाँ पे अपनी जगह बना सकते हैं तो हम मुसलमान अहले सुन्नत वल जमाअत, हमारा तो बदरजे औला फरीज़ा बनता है कि उमर को यहाँ पे जगह दें, अपने दिल के अंदर बिठाएं, उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम यहाँ पे हम मौजूद रखें, उनके दिफा में हमेशा खड़े रहें। मुहतरम हाज़िरीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, मा ज़िलना अइज़्ज़तु मुंदु अस्लम उमर, कि उमर ने जब से इस्लाम कबूल किया तब से इस्लाम और मुसलमान दोनों को क़ुव्वत मिली थी, दोनों को ताकत मिली थी। ये वही मुसलमान थे जो दारुल अरकम के अंदर अभी तक मौजूद थे, जो दार अरकम के अंदर अभी तक नमाज़ें पढ़ते थे। उमर ने कलमा शहादत क्या पढ़ी, तमाम मुसलमान खाना काबा के पास पहुँच जाते हैं इबादत करने की खातिर। ये उमर का पावर था,
ये उमर की ताकत थी जो मुसलमानों को एक घर से निकाल कर पूरी दुनिया के सामने ले आती है, मुसलमानों को इबादत को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचा देती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और यही अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि इन्ना उमर कान हिस्रन हसीनन लिल इस्लाम, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन इस्लाम के लिए एक मजबूत किले की मानंद थे। जी हाँ, एक मजबूत किला, लोग इसमें दाखिल होते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। फलम्मा मात उमर इंसलम अल हिस्न, लेकिन उमर का जब इंतकाल हुआ इस किले के अंदर शिगाफ पड़ गया। ये किला जो अभी तक एकदम मजबूत था दीन इस्लाम के लिए, इस किले में अब होल हो जाता है, लोग इस किले से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ सहाबाए किराम के विचार थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम सहाबाए किराम हमारे दरमियान एक बात बहुत मशहूर थी कि हमारे दरमियान कौन ऐसे लोग हैं जो बितरतीब सबसे बेहतरीन है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, सही रिवायत है, कहते हैं हमारे तमाम सहाबा जो थे उनका मुत्तफ़क़ा फैसला था कि हम में सबसे बेहतरीन नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबसे पहला मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हाज़रीन, ये तमाम सहाबाए किराम का कहना था। अली का भी यही कहना था। मोहम्मद इब्न हनफिया हज़रत अली के बेटे कहते हैं, मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? तो हज़रत अली ने कहा था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब उसके बाद मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि अब्बा जान उनके बाद कौन? हज़रत अली ने कहा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर अब मैं पूछूंगा मेरे अब्बा जान कहेंगे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, तीसरे खलीफा राशिद ज़ुन्नूरैन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। लेकिन मोहम्मद इब्न हनफिया इस मतलब सवाल बदलते हैं, कहते हैं अब्बा जान उमर इब्न ख़त्ताब के बाद सबसे अफजल आप हैं ना? हज़रत अली का जवाब सुनिए। अली ने कहा नहीं, मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ। अली के नज़र में अबू बकर, उमर और उस्मान का मकाम क्या था, सुभान अल्लाह, इस हदीस से आप लोग पता कर सकते हैं। सही रिवायत है, कोई गलत नहीं, कोई झोल झाल नहीं इस रिवायत में। और शियार अली जो आज अहले बैत को छोड़कर तमाम लोगों को गालियां देते फिर रहे हैं, खवारिज जो सबको गालियां दे रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ सुननी चाहिए अली का क्या नजरिया था, ये जानने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा फरीज़ा हमारा बनता है कि हम दुनिया को बतलाएं, चीख चीख कर लोगों के सामने ऐलान करें कि अबू बकर का क्या मकाम था, उमर का क्या मकाम था, उस्मान का क्या मकाम था, अली का क्या मकाम था। भाई चार के चार सबसे बेहतरीन हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं था, लेकिन सबसे बेहतर इनमें अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। ये तरतीब सहाबाए किराम के दरमियान आम थी और यही चीज़ हमारे दिल में भी होना चाहिए। और हर सहाबी चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर शर्फ सोहबत नसीब हुई, हमारी इज़्ज़त और एहतराम के लिए वो काबिल हो चुका है, हम उसे इज़्ज़त देंगे, हम उसकी ताज़ीम करेंगे, हम उसका एहतराम करेंगे, क्योंकि उसने शर्फ सोहबत हासिल की जो अल्लाह ने सिर्फ उसके किस्मत में लिखी थी। हमारे और आप जैसे लोगों की किस्मत में ये कहाँ, ये खुशनसीबी हमें अल्लाह ने नहीं दी, तो वो खुशनसीब लोग थे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जब भी सहाबा का चर्चा होगा इस कलमे और इस जुमले के साथ होगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तमाम सहाबाए किराम की इज़्ज़त और उनका एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जब भी सहाबाए किराम के खिलाफ दुनिया महाज खोले, अल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात को ये तौफ़ीक़ देना कि उन सहाबाए किराम के दिफा में सरे फ़हरिस्त हम नज़र आएँ पूरी दुनिया को। अल्लाह कल क़यामत को जब हम तेरे सामने पेश हों तो जवाब देने के काबिल न है। अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह गुनाहों से इज्तिनाब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।